This conference will now be recorded. So, students, in the previous session, we have discussed that how to insert the record into the Salesforce object, that too with programmatical approach. That means by using some Apex class, right? So, what are the steps involved to insert the record into that object? First of all, you need to create the Apex class, right? For that purpose, you need to go to the developer console, click on File, New, give some name to the Apex class, hit OK button. System will automatically create one Apex class, right? With syntax as public class, class name, curly brackets, open and close curly brackets. Once you have created that uh, uh, b- Apex class, then you need to create some methods inside it, right? And then inside that method, you need to write down that code and जिस the object with which you wish to deal with, आपको जिस ऑब्जेक्ट के साथ कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, सबसे पहले उसका आपको इंस्टेंस बनाना पड़ेगा, राइट? वंस यू प्रिपेयर दैट इंस्टेंस, then you need to use that instance name, not that object name in the rest of the program. आपको फिर रेस्ट, एक बार आपने इंस्टेंस बना लिया, तो रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम में आपको वो इंस्टेंस नेम के साथ ही वो इंस्टेंस नेम ही यूज करना है और नॉट एक्चुअल ऑब्जेक्ट नेम, राइट? एंड देन उसको आपने क्या करना है, इंसर्ट कर देना है, राइट? सो दीज आर द few steps involved in inserting the the record into the object, that is the Salesforce object, by using programmatical approach or by using some Apex class, right? Now, the statements like insert, delete, update, upsert, right, merge, and undelete. These are the six statements, right? These statements are known as DML statements. We have already discussed this in the last class, right? DML means what? Data manipulation language. Data manipulation language. So the total Apex programming is actually divided into the some category like some DML statements. Second topic is SOQL, that is Salesforce Object Query Language. It's very simple like your SQL, right? Then asynchronous programming, right? Asynchronous programming क्या होता है? That will not be the part of this internship program, right? But it is there. And then writing some test classes, some triggers. ये पांच छह मेन टॉपिक है. इसमें से हमने डीएमएल ऑपरेशन को ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं, राइट? सो डीएमएल मीन्स व्हाट? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. इसमें सिक्स स्टेटमेंट्स आते हैं, ओनली सिक्स स्टेटमेंट्स है, और वो भी बहुत सिंपल है. इंसर्ट, आपको अगर ऑब्जेक्ट में रिकॉर्ड डालना है तो इंसर्ट स्टेटमेंट, ऑब्जेक्ट से रिकॉर्ड डिलीट करना है तो डिलीट स्टेटमेंट, ऑब्जेक्ट से रिकॉर्ड अनडिलीट करना है तो अनडिलीट. अपसर्ट मीन्स अपडेट और इंसर्ट दोनों ऑपरेशन एट ए टाइम परफॉर्म करने हैं, then that there will be upsert operation. Then update operation, if you just wanted to update the record into the Salesforce object by using programmatic approach, then you need to use update statement. And final one is the merge, to merge the two records. ओनली दिस सिक्स स्टेटमेंट्स, नाम से इंडिकेट होता है कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, वेरी सिंपल, राइट? सो बट सेल्सफोर्स हैज गिवन अ लिमिट. सेल्सफोर्स ने कुछ लिमिटेशंस दिए हैं, उसको आप कभी भी पार नहीं कर सकते हो. एंड दे आर नोन एज गवर्नर लिमिट्स. दे आर नोन एज गवर्नर लिमिट. नाउ विद इन वन ट्रांजेक्शन, एक ट्रांजैक्शन में, राइट? मतलब एक कोड जब आप लिखोगे, राइट, विद इन अ ट्रांजैक्शन, उस ट्रांजैक्शन में आप 150 से ज्यादा डीएमएल स्टेटमेंट नहीं यूज कर सकते हो. यू कैन यूज द स्टेटमेंट अप टू 150 बट नॉट बियॉन्ड दैट 150. नाउ व्हाई इट इज सो? बिकॉज ये जो डीएमएल स्टेटमेंट है, नाउ द प्रोग्राम दैट यू आर राइटिंग इनटू योर डेवलपर कंसोल, राइट? So let me go to the developer console. So this is your developer console. The program, any program that you are writing into the developer console, this program is local. ये आपके local system में है, right? This program is in your local system, whatever it may be the program, right? आपके local system में है. But whenever you are performing some operation like insert operation, right, like insert operation, in that case your local system approaches to the server. क्योंकि ये पांच छह स्टेटमेंट मैंने आपको बताए, that actually deals with what? Salesforce object.
और वो सेल्सफोर्स का डेटा कहाँ पे स्टोर है? इट्स नॉट स्टोर्ड इन योर लोकल सिस्टम, रादर इट्स स्टोर्ड इन योर server, and that server for India or for our region it is AP16, and that too located in Kolkata, right? Now the thing is that जब भी कभी भी मेरे प्रोग्राम में, मेरे कोड में इंसर्ट वर्ड आया या फिर कोई भी डीएमएल स्टेटमेंट आई, राइट? अगर मेरा मेरा कोई प्रोग्राम है, राइट? सो हियर इट इज, दिस इज माय कुछ मैंने लाइन का प्रोग्राम लिख रहा हूँ यहाँ से। सपोज दिस इज माय लाइन नंबर 1, दिस इज लाइन नंबर 2, दिस इज लाइन नंबर 4, लाइकवाइज देयर आर सेवरल लाइंस ऑफ कोड आई हैव रिटन, राइट? ये मेरा कोड है, और यहाँ पे मेरा एक इंसर्ट स्टेटमेंट आ रहा है, इंसर्ट, या फिर कोई भी डीएमएल स्टेटमेंट, अभी जो मैंने आपको 6 डीएमएल स्टेटमेंट बताए हैं। सो जो भी जब भी डीएमएल स्टेटमेंट आएंगे, राइट, our local system, right, या फिर our local system will approach to the server, right, वाया इंटरनेट, राइट? सो ये मेरा फर्स्ट डीएमएल स्टेटमेंट चला गया, फिर मैंने ये हो गया, फिर मैंने कोड को कंटिन्यू किया, फिर कुछ लाइन का कोड लिखा, फिर कुछ लाइन का कोड लिखा है, राइट? एंड फिर अगेन डीएमएल स्टेटमेंट 2 आ गया, राइट? डीएमएल स्टेटमेंट 2 कोई भी हो सकता है, अपडेट, अपसर्ट, कोई भी, राइट? अगेन योर सर्वर विल रीच टू व्हाट, will reach to sorry, again your local system will reach to server, and it will perform the operation. Again you will again you are right, continuing the code, right? Inside the inside that code, again the next dml statement appears. Suppose dml statement 3, again your server will approach to what, sorry, our local system will approach to the server to perform that dml operation. So, what is happening over here? What is happening over here? So, जब भी DML statement आता है, our local system will reach out to server, right? उस दिन मैंने आपको एक सुपरमार्केट का एग्जांपल दिया था, right? सुपरमार्केट में आप जब जाते हो, right? If I wanted to purchase 5 अगर चीजें मुझे परचेस करनी है, then what I will do? Which one is the correct approach? There could be the two approaches, right? मैंने एक if I wanted to have some oils, right? Some packet of oils. So what I will do? I will collect those oil packets and reach out to the billing counter and make the bill. Then second चीज मुझे चाहिए थी some vegetables. Then again I will take that vegetables and reach out to the billing counter and make the bill. Third चीज चाहिए मुझे suppose biscuits. Then I will take the biscuits and again reach out to the billing counter and do the billing. Similarly, fourth and fifth. This is not the correct approach. Then what is the correct approach? Correct approach is that I will have some basket, right, and I will put that things into the basket, and then I will make the payment. वन शॉट में मैं सारा करूंगा। तो मुझे अगर सर्वर के पास जाना ही है तो मैं बार बार क्यों जाऊं, राइट? व्हाट आई विल डू, जो भी मुझे ऑपरेशन करने हैं मैं क्या कर लूंगा, एक बास्केट में डाल लूंगा, और वो बास्केट लेके जाऊंगा किसके पास? सर्वर के पास, और उसको बोलूंगा भाई इसका ऑपरेशन परफॉर्म कर दे। मतलब इंटरनेट पे मेरा ट्रैफिक, मेरे लोकल सिस्टम का कम्युनिकेशन सर्वर के साथ एक ही बार होएगा, राइट? तो उसके वजह से क्या होगा कि अब हर बार छोटे छोटे चीज के लिए सर्वर के पास नहीं जाएंगे। जैसे अगर बिलिंग काउंटर पे 100 लोग अगर सुपरमार्केट में शॉपिंग के लिए आए हैं, अगर 100 के 100 लोग एक एक चीज उठा के बिलिंग काउंटर पे जाए, मुझे 5 चीजें खरीदने हैं तो मैं 5 ट्रिप मारूंगा बिलिंग काउंटर पे। सेकंड पर्सन है, उसको अगर 10 चीजें खरीदने हैं तो वो 10 ट्रिप्स मारेगा बिलिंग काउंटर पे। सो दैट इज देन वो तो एक तो बिलिंग काउंटर वाला हैंग हो जाएगा, वहां पे बहुत ट्रैफिक बढ़ेगा, ह्यूज रश हो जाएगा, एंड सर्टनली अगर वो सर्वर के बारे में सोच रहे हो, सर्वर क्रैश होने के चांसेस ज्यादा है, राइट? सो दिस इज नॉट द करेक्ट अप्रोच। सो करेक्ट अप्रोच क्या है, हम उसको वन शॉट में ही सारे चीजें करने की कोशिश करेंगे, राइट? नाउ यू मस्ट हैव, इसको हम डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए सबसे पहले यू मस्ट हैव टू हैव द नॉलेज ऑफ सम फॉर लूप। फॉर लूप का आपको नॉलेज होना चाहिए। आई थिंक यू मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ फॉर लूप्स, राइट? इफ यू डोंट हैव देन आई विल जस्ट टेक अ recap of a for loop, right? Now for loop is what? For loop is used to perform some repetitive operations. किसके लिए यूज होता है? रिपीटेटिव ऑपरेशन के लिए यूज होता है। For example, if I am having a statement, right?
just go to the developer console. We will write down some Apex code, then it will be understood to you, right? If I wanted to write down some code, let me create one new Apex class for you guys. I will give the name as demo class. You can have any name, right? Once you press on the OK button, then Apex class will be prepared. Once this Apex class is created, then just take this curly brace to the down, so that will be beneficial to you. Then in order to start with this, you will have to write some method, and then the method ka syntax है public static void, then method name I will just give method 1, whatever it may be the name, and then simply open curly brackets, open and close curly bracket, right? So once you did this, now let's take for instance I just wanted to print some command. अगर मुझे सिर्फ कुछ प्रिंट करना है, लाइक लेट्स से हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, ओके। सो जैसे आप ये लिखोगे प्रोग्राम, इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद यू कैन सी दैट दिस some issue is there. Why that issue has appeared? Can anybody? Some error is there. Let me check it once again. Simple program hai. No, there is no error, right? Once it is there, oh, sorry, some error appears. No, this is not related to our class. That was related to some earlier class, right? जो earlier class है यहाँ पे class name है, right? हमारे class का name कुछ अलग है जो अभी हमने किया है, right? हमारे class का name है demo class, वो कुछ अलग class के लिए error था, right? So now in order to run this statement, what we will do, simply go to execute anonymous window, and then class name dot method name आपको type करना है, and then it will be run, right? Once this error appears, then class name dot method name. So this is my method name. So what this program will do, it will simply print a statement, right? ये कुछ ज्यादा नहीं करेगा, ये सिर्फ क्या करेगा, it will print some statement like hello world, right? So you can see the result by going into the log file and then click on this debug log. Once you click on this debug log, just simply click on this debug only checkbox, and then here you can see that hello world is printed now. No? Okay. So मुझे ये आपको क्यों दिखाया, क्योंकि आई वांटेड टू प्रिंट दिस प्रोग्राम रिपीटेटिव, अब प्रिंट दिस स्टेटमेंट 5 टाइम्स, अगर मुझे ये 5 बार इस स्टेटमेंट को प्रिंट करवाना है। सो आइदर आइदर यू कैन डू लाइक दिस, इसी स्टेटमेंट को आप 5 बार लिखो, राइट? यही स्टेटमेंट को आप 5 बार लिखो, राइट? बट दैट इज नॉट फ्रूटफुल, राइट? इसी स्टेटमेंट को मैं अगर 5 बार लिखूंगा, देन नो डाउट इट विल प्रिंट इट फॉर 5 टाइम्स, बट दैट इज नॉट द राइट अप्रोच। अगर वही मेरा 1000 बार प्रिंट करना हो तो, या एक ऑपरेशन मुझे 1000 टाइम रिपीट करना हो तो, आप एक ही स्टेटमेंट 1000 टाइम लिखते बैठोगे तो प्रोग्राम का लिंक बहुत बड़ा हो जाएगा, राइट? सो दैट इज नॉट द राइट अप्रोच। रादर we have to use some looping. Loop means what? Repetitive operation. Loop means what? Repetitive operations. So हमारा जो इसमें for loop चलता है, वो for loop कैसा है, that I will show you the syntax for the for loop. In case of for loop, there is one keyword named for. क्या है उसका keyword? For, right? After that keyword, there is one open bracket and close bracket, okay? And उसके बाद, एक मिनट, राइट? सो उसके बाद में आपको फॉर लूप में आपको कुछ लूपिंग अभी लूप देना है मुझे। लूप मतलब क्या है? अगर मुझे एक चीज बतानी है सिस्टम को कि ये स्टेटमेंट को 10 बार प्रिंट करो, तो मुझे कुछ देना पड़ेगा ना वैल्यू, कि यहां से यहां तक प्रिंट करो। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक इंटीजर डिफाइन करेंगे, राइट? इन द
इन द लास्ट क्लास, इसी के लिए मैंने लास्ट क्लास में डेटा टाइप्स क्या थे वो बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है। नाउ व्हाट इज इंटीजर? इंटीजर ये एक ऐसा डेटा टाइप है, राइट, जिसमें हम वेरिएबल में क्या स्टोर करते हैं? न्यूमेरिक वैल्यू, राइट। सो लेट्स टेक एनी इंटीजर, आई एम टेकिंग एज ए इंटीजर एज काउंटर, राइट। काउंटर में क्या लेता हूँ? एक इंटीजर लेता हूँ और उसकी वैल्यू मैंने क्या सेट कर दिया? 1 सेट कर दिया, राइट। मतलब एक एक मेरा ऐसा वेरिएबल है जिसका नाम क्या है? काउंटर है, राइट। और वो किस टाइप का है? उसमें कौन से टाइप का डेटा स्टोर होता है? सिर्फ इंटीजर। इंटीजर मीन्स व्हाट? ओनली नंबर्स। उसमें हम अल्फाबेट्स मतलब ए बी सी डी या स्पेशल कैरेक्टर या डेट एंड टाइम वो कुछ नहीं स्टोर कर सकते हैं। हम उसमें सिर्फ क्या स्टोर कर सकते हैं? नंबर्स, राइट। दैट्स व्हाट इंटीजर इंडिकेट। सो काउंटर का वैल्यू क्या मैंने सेट कर दिया कि भाई काउंटर का वैल्यू है मेरा 1। कितना है मेरा काउंटर का वैल्यू? 1। आफ्टर दैट सेमीकोलन, राइट। अभी मुझे कितने बार वो लूप को चलाना है? सपोज मुझे लूप को चलाना है 10 बार, तो मैं क्या करता हूं यहाँ पे? आई इज इक्वल टू आई लेस देन इक्वल टू 10, राइट। क्या लिख दिया मैंने? आई लेस देन इक्वल टू 10। ये क्या है मैं बताता हूं आपको। देन उसके बाद में मैं लिख दूंगा आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस, राइट। एंड देन इसके बाद में मैंने लिख दिया ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, देन दैट्स ऑल, राइट। फिर यहाँ पे मैं लिख दूंगा स्टेटमेंट्स। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? स्टेटमेंट। सो इसके वजह से अभी देखते हैं क्या होगा। जैसे ही ये फॉर लूप मेरे प्रोग्राम में आएगा, देन इंटीजर का वैल्यू क्या सेट होगा? इंटीजर का वैल्यू 1 सेट होगा, राइट। क्योंकि मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। ये जो काउंटर है, काउंटर का वैल्यू कितना सेट हो गया? 1। तो ये चेक करेगा, हमारा सिस्टम चेक करेगा कि आई का वैल्यू 10 से 10 से छोटा है या इक्वल है। तो आई का वैल्यू, इट इज बट ऑब्वियस, आई का वैल्यू 10 से छोटा है, राइट। मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। ये कंडीशन सेटिस्फाइड हुई, राइट, तो ये अंदर चला जाएगा, लूप में चला जाएगा, राइट। और साथ ही साथ काउंटर, सॉरी, ये जो काउंटर है मेरा, ये मेरा आई नहीं है, सॉरी 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 सॉरी। काउंटर का वैल्यू हमने क्या सेट कर दिया है यहाँ पे? सपोज आई हैव सेट द काउंटर वैल्यू एज 1। आफ्टर दैट काउंटर को मैंने चेक करता हूँ। काउंटर एंड देन काउंटर प्लस प्लस, राइट। अभी देखते हैं, राइट। सो सबसे पहले जैसे ही मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन शुरू होगा, जैसे ये फॉर लूप पे आएगा, सो सबसे पहले एक वो टेम्पररी इंटीजर सेट कर देगा कि जिसका नाम काउंटर है, जो वेरिएबल का, राइट। उसका वैल्यू क्या सेट होगा? 1 सेट कर देगा। फिर ये चेक करेगा कि काउंटर का वैल्यू कितना है? 1 है, राइट। सो काउंटर का वैल्यू कितना सेट किया था मैंने? 1। तो ये देखेगा कि ये 1 का वैल्यू है, ये जो 1 है इसके अंदर क्या स्टोर है? काउंटर में अभी 1 स्टोर है। तो ये जो 1 है ये मेरा 10 से छोटा है या उसके इक्वल है? सो यस, इट इज बट ऑब्वियस, वो 10 से छोटा ही है, राइट। 10 से कितना है? वो छोटा ही है। सो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। सो जैसे ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, तो ये क्या कर देगा? काउंटर का वैल्यू 1 से बढ़ा देगा। पहले काउंटर का वैल्यू कितना था? 1 था, राइट, 1 था। सो ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो काउंटर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा और ये लूप के अंदर भी चला जाएगा। सो जो भी स्टेटमेंट है वो क्या कर देगा? यहाँ पे प्रिंट कर देगा। क्या कर देगा? वो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। सपोज हमारे इसमें स्टेटमेंट है सिस्टम डॉट डीबग, राइट, हेलो वर्ल्ड, राइट। सो हमारे इसमें स्टेटमेंट क्या है? सिस्टम डॉट डीबग हेलो वर्ल्ड। सो ये क्या कर देगा? एक बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा। फिर अगेन ये फॉर लूप, लूप मतलब क्या है? ये कंटिन्यूअसली इसी में घूमता रहेगा, राइट। कब तक घूमेगा वो भी हम देखते हैं, राइट। अभी काउंटर का वैल्यू कितना हो गया था? 2 हो गया था, राइट। फिर काउंटर का वैल्यू 2 हो गया, फिर काउंटर में अभी कितना स्टोर है? 2 स्टोर है। सो ये चेक करेगा कि 2 10 से छोटा है या नहीं है। सो यस, 2 10 से छोटा है। सो अगर वो सेटिस्फाइड होता है तो क्या करेगा? काउंटर का वैल्यू जो पहले 2 था उसको क्या कर देगा? 3 कर देगा। इट विल बी सेट 3 एंड देन वो लूप में भी चला जाएगा, राइट। सो वो लूप में चला जाएगा तो ये फिर से सेकेंड स्टेटमेंट दूसरी बार प्रिंट हो जाएगी, हेलो वर्ल्ड।
थर्ड टाइम फिर अगेन यहाँ पे आएगा। अभी कितना हुआ था काउंटर का वैल्यू 3 सेट हुआ था, राइट, इट वाज सेट 3। सो जैसे ये 3 सेट होगा फिर ये चेक करेगा कि भाई काउंटर का वैल्यू 10 से कम है या नहीं। यस 10 से कम है। सो जैसे ये 10 से कम है तो फिर वो क्या कर देगा, काउंटर का वैल्यू सिस्टम ऑटोमेटिकली 3 से क्या कर देगा, बढ़ा देगा। ये प्लस प्लस मतलब क्या करता है, इंक्रीज बाय 1, राइट। सो काउंटर का वैल्यू हो जाएगा 4। फिर ये एक बार प्रिंट हो जाएगा आपका स्टेटमेंट। फिर ये अगेन यहाँ पे आएगा, राइट। फिर काउंटर का वैल्यू हो जाएगा 4 था अभी, राइट, 4 था। फिर से ये चेक करेगा कि भाई काउंटर का वैल्यू 4 है, जो 10 से छोटा है या नहीं है। यस 10 से छोटा है, तो ये सेट हो जाएगा 5। फिर और एक बार स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। अगेन ऐसे करते 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 एक बार काउंटर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। सो ये चेक करेगा काउंटर का वैल्यू 10 से छोटा है या 10 के बराबर है। सो यस 10 के बराबर है, राइट। फिर काउंटर का वैल्यू सेट हो जाएगा 11। कितना सेट हो जाएगा, 11। और इसके अंदर भी ये चला जाएगा, राइट। सो जैसे ही वो फिर से एक बार प्रिंट हो जाएगा। फिर काउंटर का वैल्यू अभी 11 था, राइट, कितना सेट हुआ था, 11। ओके, सो फिर से सिस्टम आपका चेक करेगा कि भाई काउंटर का वैल्यू 11 है। सो 10 से छोटा है क्या वो, नो। 10 के बराबर है क्या, नो। तो अभी काउंटर का वैल्यू भी नहीं बढ़ेगा और वो लूप में भी नहीं जाएगा। इस तरह से आपका फॉर लूप क्या होता है, चलता है ये लूपिंग में। ये आपको 1000, मैंने यहाँ पे अगर 1000 लिखा तो ये सारा कितना बार प्रिंट करेगा, 1000 बार प्रिंट करेगा, right? So in this way we can actually do this for loop. So what I will do, I will write this program. I will try to now same program. Now I have not done any modification. This is my Apex class name and this is my method name. But now I wanted to print this system.debug statement, let's say for 20 times. So what I will do simply here, for है ना, for integer। सो जो भी डेटा टाइप्स होते हैं उसको अगर आप टाइप करोगे तो ऐसा वो ब्लू कलर में आता है, राइट, दैट मीन्स ये डेटा टाइप है। फॉर इंटीजर आई विल टेक द वेरिएबल नेम एज काउंटर और उसका वैल्यू मैंने सेट कर दिया 1। कितना सेट कर दिया मैंने, 1। एंड देन इसके बाद में काउंटर लेस देन इक्वल टू 20 सेमीकोलन काउंटर प्लस प्लस। Now once you've done this, you have to come outside this for loop। और ये for loop भी आपको curly brackets में ही इसका कोड लिखना है, राइट। सो हमारा वही स्टेटमेंट system.debug। Now there is some issue, let me check that issue। No, there is no issue। Okay, so I have written the complete program। This is my class name, this is my method name। and then उसके अंदर मैंने क्या लिया है, for loop लिया है। for loop में मैंने एक काउंटर करके एक इंटीजर सेट किया, इनिशियल वैल्यू 1 है, राइट। फिर मैं कंडीशन लगा रहा हूँ कि काउंटर 20 बार मुझे प्रिंट करना है तो मैं यहाँ पे 20 पुट कर दूंगा कि काउंटर का वैल्यू 20 से छोटा है कम है। और उसका वैल्यू मैं हर बार क्या करते जाऊंगा, 1 से बढ़ाते जाऊंगा। और जो भी मुझे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है वो उसके अंदर लिखते जाऊंगा, राइट। नाउ अगेन ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम। वही प्रोग्राम है, class name dot method name and press on execute button। once you pressed on execute button it will get executed। and then open this debug log। once you open this debug log file, go to this debug only checkbox। and now you can see that the same statement or the same line of code, that hello world, is printed for 20 times। likewise you can do anything or repetitive task you can do। now what we will try to do here after this, that uh, we will try to insert 150 records inside my Salesforce object, or 160 records, right? And then let's see what will happen. Then see what will happen. You can just cancel this. Okay. Now here I will try to prepare some another Apex class, right? Let's say bulk record, bulk record,
Okay, so that's all. Bulk record. Okay, so this class is prepared. This class is prepared. Let's prepare some method. Okay, just go over here and public static void method one. You can have any name, right? And then okay. So now I wanted to insert multiple record, right? In the last class we have discussed how to insert a single record, right? But I wanted to insert multiple record. So multiple record insert करना है तो आपको पता है अगर repetitive task perform करना है then you have to use some for loop. Then similarly here also I will use integer, right? Counter is equal to 1. अगर मुझे सपोज 140 रिकॉर्ड्स इंसर्ट करने हैं, राइट? 140 एंड देन तो मैं इस लूप को कितने बार चलाऊंगा? 140 बार चलाऊंगा इस लूप को, राइट? सो देयर इट इज देयर एनी प्रॉब्लम टिल दिस पॉइंट? नो प्रॉब्लम, राइट? सो दिस इज द फॉर लूप. तो इसके अंदर जो भी कोड में लिखूंगा ये कितने बार एग्जीक्यूट होने वाला है? 40 बार. सो इफ आई वांटेड टू इंसर्ट हॉस्पिटल ब्रांच रिकॉर्ड, कितना कौन सा रिकॉर्ड डालना है मुझे? हॉस्पिटल ब्रांच रिकॉर्ड. सो आपको पता ही है वो कोड, बहुत सारे लोगों ने आई थिंक लिखा भी होगा. सो फॉर दैट पर्पस आई नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट द इंस्टेंस ऑफ हॉस्पिटल ब्रांच, right? Once you go to this object manager, then try to search hospital branch over here. Then this will populate, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा. इसको मैं API name को कॉपी कर लेता हूँ. Once you copy this API name, then you can simply come here and then try to create the instance. जो आपका ऑब्जेक्ट है उसका क्या करो, पहले Salesforce ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस क्रिएट करो. You know that how to create the instance. HB, this is my instance name, new object name, once again open and curly bracket and semicolon, right? So this is how the instance is created. Now HB मैं सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ पे मुझे डालना है नेम, डालना है नेम. नेम में मैं क्या डालता हूँ? सपोज बल्क. क्या डालता हूँ मैं? बल्क, राइट? सो मैंने क्या डाला है? नेम में बल्क. और मुझे वो बल्क भी डालना है, राइट? मगर हर पेशेंट का सॉरी हर हॉस्पिटल ब्रांच का नाम क्या आएगा अभी? बल्क 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 बल्क. मैं 150 अगर 140 हॉस्पिटल ब्रांच इंसर्ट करने जा रहा हूँ तो 140 के हॉस्पिटल का नाम क्या आएगा? बल्क 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 बल्क, राइट? सो मुझे वैसा नहीं चाहिए, मुझे बल्क 1 बल्क 2 इस तरह से नाम चाहिए. तो सिंपली क्या करो, उसको कॉन्केटिनेट करो, राइट? यहाँ पे प्लस लिखो और यहाँ पे ये वेरिएबल जो है आपका, मैं बताता हूँ आपको, आई विल एक्सप्लेन दिस स्टेप, राइट? एंड देन यहाँ पे ये काउंटर का वैल्यू प्लेस कर दो एंड देन सिंपली सेमीकोलन. वंस यू प्लेस दिस सेमीकोलन एंड देन insert insert hp, insert hp semicolon, right? So what is the problem in this? No problem, right? So now what this code will do, this code will insert 150 or sorry 140 hospital branches, right? So just try to run this code. How to run this code? Class name, right? And then inside this execute anonymous window, class name dot, where is my method? This is my method, method name, simply paste over here and then press on execute button. Press on what? Execute. Now it will take more time. पहले क्या था, एक ही रिकॉर्ड था तो वो जल्दी से इंसर्ट कर देता था, राइट? मगर अभी हमने 140 रिकॉर्ड्स इंसर्ट किए हैं. सो लेट्स गो टू अवर Salesforce org and try to find out our object.
और उसमें ये रिकॉर्ड्स इंसर्ट हुए हैं या नहीं है, दैट वी विल चेक. Just click on your object, hey sorry, not object, application, and then look for your hospital branch. Can you see this here? Bulk है ना, बल्क 129, बल्क ये आपको दिख रहे होंगे, बल्क 12, बल्क 13, राइट. इस तरह से हमारे क्या हो गया, अभी रिकॉर्ड्स इंसर्ट हो गए हैं, राइट. नाउ इफ आई ट्राई टू मॉडिफाई दिस प्रोग्राम, राइट, यहाँ पे मैं अगर सपोज ये काउंटर यहाँ पे 160 रिकॉर्ड डालता हूँ, कितने डालता हूँ, 160, 160, या फिर ये डीबग लॉग को एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ. बहुत ज़्यादा हो गया, नहीं दिख रहा. ओके, सो यहाँ पे सपोज ये वाला जो कोड था, या फिर मेरा पहला डीबग, दूसरा डीबग, now what we will try to do now, we will just try to insert more than 150 record, rather we will insert 160 record. insert करने की हम क्या करते हैं, अभी कोशिश करते हैं, राइट. सो जैसे ही मैं यहाँ पे गया और कंट्रोल एग्जीक्यूट सॉरी कंट्रोल ई दबाया एंड ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस कोड, देन सिस्टम विल, लेट्स सी व्हाट इट विल डू. या एरर से सिस्टम ने एरर फेंक दिया है. क्या बोला है, टू मेनी डीएमएल स्टेटमेंट 151. कितने डीएमएल स्टेटमेंट हमने यूज किए इसमें, 151 से ज्यादा यूज किया है. सेल्सफोर्स कितना बोलता है, कितना आप कर सकते हो, 150 तक आपको इंसर्ट कर सकते हो, राइट. 150 बार आपको क्या, 150 आप इंसर्ट कर सकते हो, बट नॉट वन मोर देन 150. ये सेल्सफोर्स का लिमिटेशन है. तो ये तो ऐसा ही हो गया कि भाई ये जैसे मेरे पहले, अभी हम लूप के बारे में देखते हैं, लूप के पास आते हैं. लाइक जैसे मेरे सपोज 140 रिकॉर्ड्स होते, जहाँ पे कोई एरर नहीं था, राइट. 140 अगर रिकॉर्ड्स थे, तो इन दैट केस सबसे पहले क्या होगा, ये मेथड में शुरू होगा, मेथड में आने के बाद काउंटर का वैल्यू 1 सेट होगा. फिर ये सिस्टम चेक करेगा भाई 1 का वैल्यू 150 से कम है या नहीं, यस 150 से कम है. देन काउंटर का वैल्यू 1 से बढ़ा दो, काउंटर का वैल्यू 2 हो गया. और पैरेलली उसने क्या किया, ये स्टेटमेंट, उसके अंदर के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किए, राइट. सो काउंट, देन ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के बाद, राइट, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के बाद उसने क्या किया, इंसर्ट कर दिया, एक हॉस्पिटल ब्रांच को क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया. मतलब फर्स्ट फर्स्ट लूप में उसने जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया, उसको वो एग्जीक्यूशन के लिए किधर जाना पड़ा, सर्वर के पास. फिर फिर सेकेंड टाइम भी क्या हुआ, उसने देखा सेकेंड टाइम काउंटर का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया, राइट. सो काउंटर का वैल्यू 2 हो गया, उसने चेक किया काउंटर का वैल्यू 140 से कम है या नहीं, हाँ कम है भाई, राइट. तो उसने फिर से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया. फिर से उस स्टेटमेंट में भी हमारा लोकल सिस्टम ने किधर गया, सर्वर के पास गया, राइट. मतलब 2 बार गया. फिर तीसरी बार भी लूप में आएगा, इंसर्ट स्टेटमेंट मिला. इंसर्ट स्टेटमेंट मींस डीएमएल, और डीएमएल स्टेटमेंट मींस व्हाट, टू परफॉर्म द ऑपरेशन ऑन सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट. और सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट कहाँ पे सेव है, तो आपके सर्वर में. तो डीएमएल ऑपरेशन मतलब इंसर्ट, अपडेट, अपसर्ट, ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए आपके लोकल सिस्टम को कहाँ पे जाना पड़ेगा, सर्वर के पास जाना पड़ेगा, राइट. सो फर्स्ट लूप में वो पहली बार सर्वर के पास गया, एक ऑब्जेक्ट, एक रिकॉर्ड इंसर्ट किया. दूसरे बार गया, दूसरा रिकॉर्ड इंसर्ट किया. तीसरी लूप में तीसरी बार इंसर्ट किया, तीसरी बार गया. चौथी बार गया. पांचवी लूप में पांचवी बार इंसर्ट के लिए फिर से सर्वर के पास गया. छठी बार फिर से सर्वर के पास गया. तो वो ये तो बात यही हो गया ना, मैंने एक बिस्किट का पैकेट उठाया, बिलिंग काउंटर पे गया, बिल कर लिया. दूसरा एक चीज उठाया, बिलिंग काउंटर पे गया, बिल किया, राइट.
सो दैट इज नॉट द करेक्ट अप्रोच, राइट? तो इसी को सेल्सफोर्स ने डिसाइड किया कि भाई हमने अगर इनको खुला हाथ दे दिया कि आप कितने भी बार सर्वर ट्रिप्स करो, दिस इज नोन एज सर्वर ट्रिप्स, अगर हमने कितने भी सर्वर ट्रिप्स इनको दे दिया, राइट, तो लोग कुछ चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे और हमारे सर्वर के पास बहुत ट्रैफिक बढ़ेगा और देर इज a strong possibility हमारा सर्वर क्या हो सकता है, क्रैश हो सकता है. So in order to solve that problem, Salesforce has given some limitation कि ये आप 150 से ज़्यादा DML ऑपरेशन विद इन अ ट्रांजैक्शन नहीं परफॉर्म कर सकते हो. तो फिर उसका अल्टरनेटिव क्या है? यस, अल्टरनेटिव है, राइट? सो जैसे आपके सुपरमार्केट के लिए आप क्या करते हो, एक बास्केट लेते हो और बास्केट में पूरा सामान डालते हो और फिर फाइनली जाके बिल करते हो. सो ऑन द सेम सिनारियो और विद द सेम थिंग, यहाँ पे भी ऑपरेशन परफॉर्म होता है. आपको कुछ बास्केट करना पड़ता है. आपको क्या परफॉर्म करना पड़ेगा यहाँ पे? कुछ स्टोरेज लेना पड़ेगा लोकल सिस्टम में, राइट? और वो स्टोरेज में आप क्या करोगे, वो सारा डेटा उसमें डालोगे और एट वन शॉट जाके बिलिंग काउंटर पे बिल करोगे या फिर एट वन शॉट सेल्सफोर्स के सर्वर के पास जाके आप एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर सकते हो, right? So that is what the bulkification that we will discuss in the next class, right? So that is very important thing, and वो आपको, क्योंकि दैट विल नॉट बी कवर्ड इन दिस सेशन बिकॉज आई नीड टू ये जो आपको मैंने अभी बोला बास्केट, राइट? सो बास्केट मतलब क्या है वो पहले समझाना पड़ेगा, वो कैसे, उसका सिंटैक्स क्या है वो बताना पड़ेगा और फिर आपको कोड पूरा समझाना पड़ेगा, राइट? तो हमने उस केस में 160 रिकॉर्ड के हमने 1000 रिकॉर्ड भी इंसर्ट किया तो भी वो एकदम से वन शॉट में आपके सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट में इंसर्ट हो जाए, राइट? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? नाउ हियर वन मोर थिंग इज दैट ये जो बल्क के बाद मैंने काउंटर लिखा है, राइट? ये बल्क, ये क्या है? स्ट्रिंग. जब भी हम सिंगल कोट में कुछ लिखते हैं दैट इज स्ट्रिंग डेटा. और जब भी हम किसी में किसी को ये नहीं देते हैं, सिंगल कोट नहीं देते, दैट मीन्स इट्स अ इंटीजर, राइट? सो और जब दो अलग काउंटर, इंटीजर और इंटीजर का एडिशन अगर हम करेंगे, अगर मैं 2 + 2 परफॉर्म करता हूं, फॉर एग्जाम्पल, if I am doing 2 + 2, then system will give me the answer of 4. But if I does do the addition like 2, 2 means string है आपका, सपोज ये स्ट्रिंग को हम कैसे लिखते हैं, इस तरह से लिखेंगे हम, आप हर बार 2 + 2, right? Then system will give you answer of 2, 2. समझ में आ गया आपको दोनों का डिफरेंस? जब आप इंटीजर नंबर प्लस नंबर करते हो तो सिस्टम आपको आंसर क्या देगा? दोनों का एडिशन, 2 + 2 = 4, या फिर 4 + 4 करोगे तो 8, 4 + 2 करोगे तो 6. इस तरह से आपको आंसर लिखेगा. बट आप किसी स्ट्रिंग का, 2 का मतलब ये स्ट्रिंग हो गया, अभी स्ट्रिंग का +2 करेंगे तो वो क्या कर देगा? दोनों को सिर्फ क्या कर देगा? अपेंड कर देगा. अपेंड मतलब दोनों को एक साथ लिख देगा, सिर्फ दोनों को एक साथ ही लिख देगा, मतलब 2 और ये नंबर 2 आ गया, दैट्स ऑल. वो कॉन्केटिनेशन बोलते हैं हम इसको, राइट? सो दैट इज व्हाट द कॉन्केटिनेशन इज. सो दिस इज व्हाट the issue or the governor limits given by the Salesforce, that we are having only, we can perform only 150 DML operation within a transaction. Is this clear to everyone? Sonali, you can stop the recording. Sonali, are you there? Yes, sir. Stop the recording. Sonali, are you doing, or shall I do it from my side? There is something issue, unable to pause the recording.
Okay, not an issue. I think. Okay, students. So let's see you in the evening, right? So please be ready with your tasks. We will be checking those tasks. Okay. Thank you.